Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. This is another video जहाँ पर हम अपने legal current affairs for the year 2021-2022 revise करेंगे for your upcoming examinations. These questions might hold a lot of importance because this is based on recent events. तो यहाँ से questions आपके आ सकते हैं. Starting with the first question says the Lok Sabha recently passed the Tribunal Reforms Bill 2021 to dissolve at least 8 tribunals. Now I had specifically covered this on my Instagram post which I share on YouTube as well, जहाँ पर हमने बात करी थी कि IPR के स्पेशली जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स आर बेसिकली दोज बॉडीज़ दैट हैव बीन डेडिकेटेड टू डिसाइड पर्टिकुलर केसेस. यानी जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट्स हैं वो TD SAT को जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स अलग से इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल को जाती हैं. तो इसी को देखते हुए कुछ, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में भी ये फील हुआ कि ट्राइब्यूनल्स पे भी बर्डन है, ट्राइब्यूनल्स में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड कोर्ट्स में ऑलरेडी केसेस हैं, तो वापस से ये फील किया गया कि कुछ ट्राइब्यूनल्स को चेंज कर दिया जाए, रिफॉर्म कर दिया जाए, कुछ ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया जाए. And all this has been covered by me. Now what does it basically do? It dissolves the 8 tribunals functioned as appellate bodies to hear the disputes and further transfer their functions to existing judicial forums such as a civil court or a high court. तो ये दोनों ही conditions इस नए बिल में लाई गई हैं, इसलिए option C is the correct answer here. Moving forward, which bill amended the Finance Act 2017 and इसमें ये जो प्रोविज़न है, इस बिल में जो प्रोविज़न आया था वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट. नाउ द बिल दैट अमेंडेड फाइनेंस एक्ट वाज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल. दिस बेसिकली ट्राइड टू change the tenure of the appointment and chairpersons for in cases of these tribunals. 4 years का इसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया गया था, जबकि it has to be 5 years, which was struck down, and this is the bill that basically brought the amendment to the Finance Act. Then moving forward, draft mediation bill गवर्नमेंट ने इशू किया था फॉर पब्लिक कंसल्टेशन. नाउ व्हाट इज़ दिस ड्राफ्ट मीडिएशन बिल अबाउट? फर्स्टली अंडरस्टैंड मीडिएशन क्या होता है. मीडिएशन इज़ अ प्रोसेस ताकि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो सके, पार्टीज़ आपस में डिसाइड करके सेटलमेंट पे आ सके रादर देन रीचिंग द कोर्ट एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो. तो ये बिल बेसिकली आया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट टू अप्रोच competent adjudicatory forums, and also a draft mediation bill provides for post litigation mediation. Draft mediation bill basically provides for pre-litigation mediation. So here basically the answer is safeguard the interest of litigants to approach the competent adjudicatory forums. अगर यहाँ पर pre-litigation होता तो आंसर B and C होता. Now this bill basically wants कि 180 days में dispute resolve किया जा सके. Parties can seek an extension not exceeding further 180 days, and also Indian mediation जो center है वो establish किया जाना है इस mediation bill के अंदर, who will see the functioning and look into the application of this bill. Then सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ड्राफ्ट मॉडल रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी रिलीज़ किए. नाउ दीज रूल्स दे आर कवर्ड अंडर what all will be covered under this? Live streaming and recording of proceedings of tribunals will be covered, lower courts will be covered, and high courts will be covered. Therefore all of the above is the answer here, and we have seen because the need was felt for live streaming and recording of court proceedings during the COVID times, when the courts were also functioning online and the courts realized the importance of media and live streaming. Then further let us understand फर्दर लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स जो है, ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कहाँ पर हमारा राइट आता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में फॉल करता है. स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी, जहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने बोला था कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स जो है ये लोगों को एक्सेस होना चाहिए बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द सिटीजन्स.
देन फर्दर कौन सा वो फर्स्ट हाई कोर्ट है विच इज़ विच इज़ लाइव स्ट्रीम्ड इट्स प्रोसीडिंग विच इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका हाई कोर्ट. द फर्स्ट हाई कोर्ट वी ऑल सॉ ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन डी, गुजरात हाई कोर्ट वॉज द फर्स्ट वन टू लाइव स्ट्रीम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. देन वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें पुलिस, कस्टम्स और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं 92 कंट्रीज़ की. द ऑपरेशन इज़ कॉल्ड ऑपरेशन पैंजिया 14 एंड बेसिकली इंटरपोल इज़ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ लुकिंग आफ्टर इट. एंड अगर इंडियन काउंटर पार्ट की बात करें तो CBI इन्वॉल्व है इन दीज अथॉरिटीज़ that we are speaking about. Now what this operation is all about? The next question is, recently Interpol through its operation Pangea targeted the sale of fake medicines and products online. So basically जो online websites हैं जो fake medicines sell कर रहे हैं and counterfeit products goods sell कर रहे हैं over the counter, ये सब चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए, ये इन वेबसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन लिया गया है. देन मूविंग फॉरवर्ड, सेंटर ने अपनी जो MPLAD स्कीम है, जो हमने बात करी थी, MPLAD स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है कि MPs दे कैन डिसाइड फॉर फंड्स, दे कैन एलोकेट फंड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड ये जो स्कीम है, अब इसके अंदर कुछ रिविजन आया है, कुछ नॉर्म्स रिवाइज करे गए हैं. उसमें रिवाइज नॉर्म के अकॉर्डिंग्स अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या चीज़ रिवाइज हुई है? MPs विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज़ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द फंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. MPs विल बी एबल टू यूज़ दिस interest, or MPs will be given limited amount of funds for the development project. The correct answer is option A. ये जो इनको फंड दिया जाता है, ये 5 करोड़ का फंड जो दिया जाता है, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट आ रहा है, the MPs will not be using it, they have to return it back. देन हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इट अलाउड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन हु हैड कंप्लीटेड डैश वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज फीटस फॉर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़. अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो लिमिट है वो है 20 वीक्स की. हाउएवर ये जब केस आया एंड फिर अमेंडमेंट आया 2021 में कि ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ा के 24 वीक्स करा जाए इन स्पेशल केसेस. व्हाट आर दी स्पेशल केसेस की रेप विक्टिम्स हैं एंड वहाँ पे प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं, या फिर मान लीजिए जैसा ये केस है, फीटस फॉर सफरिंग फ्रॉम अबनॉर्मल मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, वुमेन की लाइफ को खतरा है. इस केस में अब यहाँ पर 22 वीक्स में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ कर दिया गया. एंड close to this the amendment was also brought in. So medical termination of pregnancy amendment जो है that is very important. Further एक और अभी recently law आया है, we might take that question up in the upcoming videos, and I had also posted about it on my channel and Instagram about this another recent case. So I would really advise you कि अगर आपको updated रहना है with the legal current affairs as and when they are posted, so that at the end you don't need questions, you know already what is happening when and where and how. Keep following us on our channel, subscribe to our channel and also follow us on Instagram ताकि आपको ऐसे updates regularly मिलते रहें.